So in this lecture, just we are going to solve the different questions from the application of differentiation chapter, and the subchapter is the maxima and minima. Okay. So I think in the last lecture from the maxima minima, okay, I think we have discussed about the first order derivative test, that means the sign test. Okay, that means sign changing. Okay, positive to negative, that means local maximum, negative to positive, then local minimum. These are the concepts. Okay, so if you want to find the maximum minimum points and the maximum minimum values, then you can use the first order derivative test. Okay, so using this first order derivative test or sign test, whatever it is, you can find all the maximum and minimum points. Okay, points where the function will be minimum or maximum as well. एक पॉइंट तो होगा ना, जिस पॉइंट में जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है लोकल मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट एज वेल. ओके, तो यहाँ पर देखो हम लोग अभी जस्ट रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट, साइन टेस्ट कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम डिफरेंट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड लेवल एग्जाम्स. ओके, सो फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स. Find all local maximum and minimum points of fx equals to x to the power 5 minus 5x to the power 4, okay, plus 5x cube plus 5x cube minus 1. This is the function actually by using sign test. So it is not confirmed that the sign test word will be given in the exam. Okay, so just whatever the process will be fruitful and useful for you, and which is very much easier with respect to the other concepts. Okay, so if you have the clear concept, then you can use the sign test. Okay, so sign test is very interesting and very important also. Okay, so fx given fx equals to x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 5x cube minus 1. So f dash x equals to 5x to the power 4 minus 20x cube plus 15x square. Okay, so just if you take 5x square as common, 5x square as common, okay, so I think that will be x square minus 4x plus 3. Okay, so now 5x square, now if you use the middle term factorization here, minus 3x minus x plus 3, you can use, no problem. So f dash x equals to 5x square x minus 3 x minus 1. So these are the factors. So for maximum or minimum values, so that means if you want to find the maximum and minimum values, then some points at first, some points would have been discovered, would have been found first. Okay, so without the points, I think you couldn't check whether it is minimum or maximum. Okay, so if you want to find the points where the maximum and minimum conditions I think are going to be checked. Okay, so that point should be found first. F dash x equals to 0. That means 5x square x minus 3 x minus 1 equals to 0. So the values of x are x equals to 0, x equals to 3 and x equals to 1. Three values of x are there. Three values of x are there. Now one by one we will have to check for each and every points 0, 3, 1 whether it is maximum or minimum. So at x equals to 0, so that means if you draw the flow chart here, 0, 1 and 3. So at first less than 0 case and then greater than 0 case. Okay, so less than 0 case, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, 0 से छोटा -1 चूज कर सकते हो. This is the square term. So in the square term, whatever the values of x will be there, that means either it will be
positive or negative, the answer, ultimate answer will be same because the square is there, no? Ultimate answer will be positive. So 0 minus 3 0 से छोटा है ना, तो minus 1 minus 3 that means minus का आ गया, -1 that means minus का आएगा, that means ये भी minus का है, ये भी minus का है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तीनों मिलके पॉजिटिव, ये माइनस माइनस पॉजिटिव और पॉजिटिव प्लस ही होगा, दैट मीन्स लेस देन 0 केस के लिए पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 केस के लिए, अब ग्रेटर देन 0 1 तो चूज, यू कांट चूज दिस वन बिकॉज द अनदर इंटरवल इज 1 हियर, सो आई थिंक you will have to choose those values which are lying between 0 and 1. Okay, so 0.5 whole square, that means positive, 0.5 minus 3 that means negative, 0.5 minus 1 that means what, negative, 0.5 से 3 माइनस ये भी नेगेटिव होगा, 0.5 से -1 ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 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 प्लस, that means positive to positive. That means x equals to 0 में this f dash x, that means this first order derivative will not change its sign. So if in any point, okay, the function will not change its sign, then this point is called the point of inflection. We will actually just discuss it about this point of inflection. But at x equals to 0, the fx, actually given fx or f dash x, whatever it is not changing his sign. That means what? Neither maximum nor minimum, कोई भी नहीं है. That means at x equals to 0, f dash x is not changing his sign. So fx is neither maximum nor minimum at x equals to 0. ये है point number 1. Point number 2, at x equals to 1. So at x equals to 1, here you can see at x equals to 1, less than 1 case, for less than 1 case, positive is also there. Okay, so no need to check this less than 1 case. Now it's time to find the greater than 1 case, whether it is negative or positive. So greater than 1, that means 1 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले, 2 ले सकते हो, 2 पुट करो, ये तो पॉजिटिव ही होगा, 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 minus 3 negative, 2 minus 1 positive, positive positive negative, that means ultimate answer will be negative. That means for greater than 1 case, the f dash x is negative. So that means f dash x changes his sign positive to negative. That is fx is positive to negative कब होता है? जब लोकल मैक्सिमम होता है. fx is local, so fx is local maximum. Okay, now it's time to check for x equals to 3. For x equals to 3, so for x equals to 3, for x equals to 3, less than 3 case, for less than 3 case, negative sign is there. Okay, here you can see the negative values are there. Now for greater than 3 case, that means if you choose 4 here, that means 4 square positive, 4 minus 3 positive, 4 minus 3 positive. That means for greater than 3, positive values are there. That means the f dash x changes his sign negative to positive. So fx is local minimum at x equals to 3. लोकल मिनिमम आया है किसमें? क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है. लोकल मिनिमम एट x equals to 3, x equals to 1 में लोकल मैक्सिमम आ रहा है, और x equals to 0 में neither maximum nor minimum. Okay, then next question, just write the next question. Find all the local maximum and local minimum points find all the local maximum and local minimum
points of fx equals to sin x plus cos x, where 0 less than x less than pi by 2. So it is your given fx. Now you need to find the local maximum and the minimum points. Okay. So if you want to find the local maximum and minimum points where this function shows the maximum values and the minimum values as well, just you need to find the first order differentiation. That means given fx equals to sin x plus cos x. Okay. So f dash x, that means first order differentiation, cos x minus sin x, where 0 less than x less than pi by 2. You need to write this line because it is the range of x. F dash x equals to 0. That means cos x minus sin x equals to 0. That means cos x equals to sin x. That means tan x equals to 1. So x equals to, I think, pi by 4, because the x range is 0 to pi by 2. That means whatever the values lying between this 0 and pi by 2, that should be found first. Okay. So I think only one value is there, pi by 4. Yeah. There is no other values of x lying between this interval. Okay. So एक ही वैल्यू है पाई बाई 4, इसलिए हम लोगों ने निकाल लिया है. अब पाई बाई 4 से ये है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 से छोटा देखेंगे, पाई बाई 4 से ग्रेटर देखेंगे. ठीक है. अच्छा, हियर पाई बाई 4 से छोटा देखते हैं. ठीक है. तो पाई बाई 4 से छोटा एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है? एफ डैश एक्स मतलब ए cos x माइनस साइन एक्स. अच्छा, पाई बाई 4 से छोटा जो है मतलब 30 डिग्री. पाई बाई 4 तो मतलब 45 से छोटा वैल्यू चूज करना है. दैट मीन्स 30 डिग्री. cos 30 डिग्री क्या होता है? हाफ. cos 30 होता है हाफ. सॉरी, cos 30 √3/2. cos 30 मीन्स √3/2 माइनस sin 30, दैट मीन्स माइनस हाफ. तो इसका जो आंसर आएगा ये क्या पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा? √3/2. √3 मतलब 1.732 ग्रेटर वैल्यू है. √3/2 ग्रेटर वैल्यू है, हाफ छोटा वैल्यू है. दैट मीन्स ग्रेटर से छोटा वैल्यू आप माइनस कर रहे हैं. दैट मीन्स आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा. दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 आएगा. है नहीं? अब x का वैल्यू पाई बाई 4 से ग्रेटर चूज करना है. दैट मीन्स 60 डिग्री. तो cos 60 मतलब यहां पर होता है हाफ. ओके. cos 60 मतलब होता है हाफ माइनस sin 60. दैट मीन्स ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि इससे ये माइनस करेगी तो आंसर तो यहां पर नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स cos x माइनस sin x लेस देन 0. तो इस केस में f डैश x आ रहा है ग्रेटर देन 0 और इस केस में f डैश x आ रहा है लेस देन 0. दैट मीन्स जब पाई बाई 4 से छोटा वैल्यू तब पॉजिटिव आ रहा है, जब ग्रेटर वैल्यू तब नेगेटिव आ रहा है. तो दैट मीन्स f डैश x चेंजेस his sign from positive to negative. So fx is local maximum होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव एट किसमें? x इक्वल्स टू पाई बाई 4. बस यही होता है आंसर. दैट मीन्स द लोकल मैक्सिमम पॉइंट इज x इक्वल्स टू पाई बाई 4. ओके. मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा? x इक्वल्स टू पाई बाई 4. ठीक है. फिर नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिखो. fx इक्वल्स टू, ऐसे ही क्वेश्चन तो सेम ही होगा. fx इक्वल्स टू sin to the power 4x plus cos to the power 4x. fx equals to sin to the power 4x plus cos to the power 4x. fx equals to sin to the power 4x plus cos to the power 4x और x का वैल्यू 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2. सेम केस ही है. गिवन fx equals to sin to the power 4x plus cos to the power 4x. So f dash x क्या आएगा? 4 sin cube x into cos x plus 4 cos cube x
इंटू माइनस साइन एक्स। सो दैट मीन्स दोनों से अगर मैं कॉमन लू, साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले लेता हूं, साइन एक्स कोस एक्स अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 4 साइन एक्स कोस एक्स। ओके, इसको एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, यहां पर माइनस, सामने माइनस, तो इट मीन्स माइनस 4। एक काम करते हैं, 4 को 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखते हैं, और इसको फॉर्मूला कॉस ट्वाइस एक्स लिखते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है? -2 साइन ट्वाइस एक्स कॉस ट्वाइस एक्स। तो पूरा फॉर्मूला क्या बनता है? साइन 4x। ओके, अच्छा यहां पर हियर 0 लेस देन x लेस देन π/2। ओके, तो यहां पर तो 4x का चाहिए ना रेंज, x का है गिवन है, तो अगर मैं 0 लेस देन 4 मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर होगा 2π। दैट मीन्स 4x का वैल्यू 0 से लेके 2π तक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आओ, हियर f डैश x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स साइन 4x इक्वल्स टू 0। अब 0 को साइन क्या क्या लिख सकते हैं किस इंटरवल में? 0 से लेके 2π तक। ओके, अच्छा तो यहां पर एक तो x का वैल्यू, तो 0 से लेके 2π तक, 0 से लेके 2π तक यहां पर देखो 4x का वैल्यू ये मिल रहा है, 4x का वैल्यू पाई मिल रहा है। दैट मींस x का वैल्यू क्या है? π/4। x का वैल्यू क्या है? π/4। यहां पर 4x का वैल्यू देखो, सो दैट मींस साइन 4x इक्वल्स टू 0। तो 0 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? साइन 0 भी लिख सकते हैं। ओके, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो x इक्वल्स टू π/4। नाउ π/4 से छोटा, π/4 से ग्रेटर, दो केसेस आएगा। ये π/4 है, π/4 से छोटा, π/4 से ग्रेटर, दो केसेस आएगा। तो इसमें देखो f डैश x का वैल्यू आपको पता है कि नहीं? Here at x equals to π/4, okay, x less than π/4। so यहां पर x का वैल्यू π/4 से छोटा चूज करना है। दैट मीन्स 30 डिग्री साइन 4x, तो π/4 से छोटा वैल्यू अगर मैं चूज करूं, दैट मीन्स π/6, 30 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर साइन 4x इक्वल्स टू, देखो तो यहां पर अगर मैं ग्राफ में थोड़ा चेक कर लूं, साइन 4x, दैट मीन्स साइन 4 इंटू एक्स मीन्स व्हाट? π/4 से छोटा, दैट मीन्स π/6 चूज कर रहे हैं। दैट मीन्स ये 2 ये 3, दैट मीन्स साइन 2π/3, साइन 2π/3, 2π/3 ये ग्रेटर देन 0 आएगा। साइन 2π/3 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सो अगर यहाँ पर साइन 4x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं माइनस साइन ऐड करूं, दैट मींस साइन 4x ये लेस देन 0 हो जाएगा। सो यही तो है ना डैश x लेस देन 0, है कि नहीं? क्योंकि साइन 2π/3 इसका आंसर क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है? तो साइन 2π/3 को अगर मैं थोड़ा ऐसे लिखूं, देखो साइन पाई माइनस π/3, है कि नहीं? तो पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट का केस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन का वैल्यू तो पॉजिटिव आता है ना, तो पॉजिटिव साइन देख लिखा है। फिर f डैश x में तो माइनस साइन 4x है ना, मुझे तो f डैश x लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 ये चेक करना है, तो इसलिए माइनस साइन ऐड कर दिया। अब मैंने बोला था कि माइनस साइन अगर आपने मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, तो ये इनइक्वालिटी साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ग्रेटर देन होने से लेस देन होता है, लेस देन होने से ग्रेटर देन हो जाता है। दैट मींस ये होता है। अब सेकंड केस है, नाउ x का वैल्यू π/4 से ग्रेटर चूज करना है।
पाई बाई 4 से ग्रेटर मतलब साइन 4 एक्स पाई बाई 4 से ग्रेटर 45 डिग्री से ग्रेटर दैट मींस 6 डिग्री 6 डिग्री मतलब पाई बाई 3 ओके सो दैट मींस साइन 4 पाई बाई 3 तो 4 पाई बाई 3 को तो अगर मैं तोड़ के ऐसे लिखूं आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का केस होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है नेगेटिव होता है सो दैट मींस ये इसका वैल्यू लेस देन 0 है। अगर मैं माइनस साइन बोथ साइड एड करूं तो साइन 4x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा सो दैट मींस f डैश x ग्रेटर देन 0। सो मैं जब x का वैल्यू पाई बाई 4 से छोटा चूज कर रहा हूं तब f डैश x आ रहा है लेस देन 0 दैट मींस नेगेटिव ये नेगेटिव आ रहा है। अब पाई बाई 4 से ग्रेटर वैल्यू चूज कर रहा हूं तो f डैश x का वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन 0 दैट मींस पॉजिटिव। सो यहां पर चेंजेस जो है वो क्या हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो दैट मींस ऐसे लिखो हियर f dash x changes his sign negative to positive that is throw ऐसे लिखो throw x equals to pi by 4 so fx is local minimum at x equals to pi by 4 at x equals to pi by 4 बस हो गया है क्या नहीं वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सब ठीक है। फिर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ट्वाइस एक्स माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है साइन ट्वाइस एक्स माइनस एक्स दिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चंस आर लिटिल बिट tough and complicated also and that's why just we are solving the trigonometric functions more and more just for your convenience just I am solving this trigonometric functions as well okay sin twice x ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है sin twice x minus x बहुत बार आ चुका है sin twice x minus x minus pi by 2 less equals to x less equals to pi by 2 okay so ये है fx so f dash x equals to cos twice x into 2 cos twice x into 2 minus 1 अगर मैं f dash x equals to 0 करूं it is cos 2 cos twice x minus 1 equals to 0 that means cos twice x equals to half तो यहां पर देखो माइनस पाई बाई 2 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू पाई बाई 2 यहाँ पर x का रेंज दिया है बट यहाँ पर आपको क्या मिला ट्वाइस एक्स मिला तो दैट मींस माइनस पाई लेस इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स लेस इक्वल्स टू पाई इट मींस ट्वाइस एक्स का वैल्यू माइनस पाई से लेकर पाई तक होना चाहिए तो cos ट्वाइस एक्स हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos pi by 3 it means twice x equals to pi by 3 x equals to pi by 6 ये एक है ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा यहां पर तो ये x equals to pi by 6 मिला। अब सिमिलरली क्योंकि इस रेंज में जो जो वैल्यू आपको मिलना चाहिए वो सब आपको निकालना पड़ेगा दैट cos ट्वाइस एक्स हाफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos माइनस पाई बाई 3 क्योंकि माइनस पाई से है ना तो नेगेटिव एंगल्स भी इन्वॉल्व हम लोग कर सकते हैं तो दैट मींस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3 दैट इज x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6 सो दैट मींस दो वैल्यू मिला है यहाँ पर x इक्वल्स टू पाई बाई 6 और x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6 सो नाउ एट x इक्वल्स टू पाई बाई 6 में चेक करते हैं तो पाई बाई 6 में चेक करने के लिए x लेस देन पाई बाई 6 एक केस होगा सो लेस देन पाई बाई 6 f dash x क्या होगा f dash x लेस देन पाई बाई 6 मतलब f dash x का वैल्यू क्या है ये ठीक है ना ये है f dash x तो पाई बाई 6 से छोटा वैल्यू चूज करना है दैट मींस 30 डिग्री
से छोटा है। 5/6 में 30 0 डिग्री यूज करते हैं। cos 0 डिग्री cos 0 तो 1 होता है। 2 into 1, ये 0 पुट करने से 2 into cos 0 1, that means 2 into 1 2, 2 minus 1 cos भी बाहर है, that means f dash x greater than f dash x equals to 2 cos twice x minus 1, ये greater than 0 है। x greater than 5/6 होने से that means 30 डिग्री से ज्यादा होने से that means 45 cos 45 डिग्री, that means cos 45, यहाँ पर अगर 45 that means cos 90 1 है कि नहीं, cos 90 मतलब 0 होता है, ठीक है। तो 2 into 0 0 0 minus 1 नेगेटिव आ रहा है, that means f dash x less than 0 आ रहा है। So f dash x changes his sign positive to negative, positive to negative. So fx is local maximum at x equals to 5/6. Similarly, you can check x equals to minus 5/6 also. Okay, that will be your homework. x equals to minus 5/6 के लिए आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। Okay. ओके, फिर उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मीन्स आई थिंक ये जो है हम लोगों ने अभी जो सोल्यूशन किया है वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, साइन टेस्ट उसको बोला जाता है, साइन टेस्ट। और ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर हायर ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी जा सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी जा सकता है, नो ऑर्डर। ओके, सो ये इसलिए इसको बोला जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अच्छा क्या होता है ये टेस्ट? एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, देन पॉइंट नंबर 1, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू a। ठीक है, एफ डैश एक्स 0 करने से एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा, है क्या नहीं? अब if at x equals to a, okay, f double dash x जब लेस देन 0 निकलता है देन क्या होता है? लोकल मैक्सिमम होता है, ठीक है। if at x equals to a f double dash x greater than 0 निकलता है तब लोकल मिनिमम होता है, लोकल minimum. If at x equals to a, जब f dash double dash x equals to 0 निकल जाता है, ओके, then x equals to a is called point of inflection. Okay, point of inflection, and then f triple dash x should be found. f triple dash x should be found. ठीक है, and proceeding this way. That means फिर से अगर f ट्रिपल डैश x भी 0 आ जाए तब आपको f that means f4x, that means 4 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है f ट्रिपल डैश में ही जाता है, मतलब अगर हो भी ज्यादातर क्वेश्चन जो है f डबल डैश x देखिए हो जाता है। अब एक दो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि f डबल डैश x से मतलब यू कांट डिटरमाइन वेदर इट इज maximum or minimum by using this second order differentiation. Anyhow, just we have to proceed to the actually the third order differentiation. But up to third order differentiation, that actually will be enough for class 12. Okay, in the higher classes you will get the nth order differentiation also. No problem. Just regarding this concept, we will solve one question here. Okay,
Now, find all the local maximum and minimum points. Find all the local maximum and minimum points of fx equals to. Find all the maximum and minimum points of fx equals to. Find all local maximum and minimum points of fx equals to minus 3 by 4 x to the power 4 minus 8x cube minus 45 by 2 x square plus 105. Okay? Just you need to find the local maximum and the minimum points, and the corresponding maximum value and the minimum value should be found also. Okay, just here fx equals to minus 3 by 4 x to the power 4 minus 8x cube minus 45 by 2 x square plus 105. Now f dash x equals to minus 3 by 4 4x cube minus 8 3x square minus 45 by 2 twice x. 4 cancel, 2 cancel. That means minus 3x cube minus 24 x square minus 45x. That means if you take 3x as common, x square minus plus 8x square plus 15. So minus 3x x square plus 5x plus 3x plus 15. That means minus 3x x plus 5 x plus 3. So these are the factors of f dash x. Now the second step is, after getting this f dash x value, you will have to find f dash x equals to 0. You have to write the statement for maximum and मिनिमम वैल्यू. ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए तो हम लोग एक आइडेंटिटी, एक इक्वलिटी यूज कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? ये ऑल टाइम आपको करना पड़ेगा. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करने से एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आपको तो पॉइंट निकालना है ना. तो पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स, इस पॉइंट में वैल्यू जो है वो इक्वल 0 आपको एज्यूम करना है. ठीक है, तो इट मींस minus 3x x plus 5 x plus 3 equals to 0. That means x equals to 0, minus 5 minus 3, ये मिला आपका x का वैल्यू. Now ये तो आपका मिल गया है कि नहीं? तो ये x क्यूब है, x क्यूब है. अब आपको निकालना है f डबल डैश एक्स. नाउ एफ डैश एक्स क्या है, ये लाइन ले लेते हैं. ठीक है, इजी होगा. माइनस 3x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 45x. अब एफ डबल डैश एक्स निकालें. माइनस 9x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 45, ये है एफ डबल डैश एक्स. अब एट एक एक पॉइंट करके चेक करेंगे. एट एक्स इक्वल्स टू 0. एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या निकलता है, देखो. एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है एफ डबल डैश एक्स में. ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. माइनस 45 दैट मींस लेस देन 0 आ रहा है. सो दैट मींस एट एक्स इक्वल्स टू 0 द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम. जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट. सो एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0 एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम. तो बाहर बहुत बारिश हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आ जाए. सो फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज द नेचर इज फॉलिंग. ओके, वी कांट डू एनीथिंग हियर. ओके, सो जस्ट अबाउट दिस बैकग्राउंड नॉइज, जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर्स एज वेल. ओके, सो x इक्वल्स टू 0 ये आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? एट x इक्वल्स टू माइनस 5. अब इसमें चेक करना है एफ डबल डैश एक्स. एफ डबल डैश एक्स क्या था, माइनस 9 एक्स स्क्वायर दैट मींस माइनस 5 होल स्क्वायर
-48 इंटू -5 और इधर -45 है कि नहीं। तो -9 इंटू 25 माइनस माइनस प्लस 48 इंटू 5 240 -45 दैट मीन्स ये होगा 25 इंटू 9 दैट मीन्स 225 -225 -45 प्लस 240 लेस देन 0 ही आएगा। तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू -5 fx इज लोकल मैक्सिमम लेस देन 0 आ रहा है। f डैश x डबल डैश x का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है इसलिए लोकल मैक्सिमम। नाउ f x इक्वल्स टू -3 देख लेते हैं f डबल डैश x का वैल्यू क्या आ रहा है। f डबल डैश x मतलब क्या है -9 -3 होल स्क्वायर -48 इंटू -3 -45 दैट मीन्स -9 इंटू 9 ओके माइनस माइनस प्लस -45 ठीक है। इसका देखो तो क्या होता है आंसर, इसका देखो तो क्या होता है। तो f डबल डैश x इक्वल्स टू -81 प्लस 144 -45 ये ग्रेटर देन 0 ये ग्रेटर देन 0 आएगा है कि नहीं। सो f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो एट x इक्वल्स टू -3 fx इज ग्रेटर देन 0 कब होता है लोकल मिनिमम। ओके सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 में लोकल मैक्सिमम आया, x इक्वल्स टू -5 में लोकल मैक्सिमम आया, x इक्वल्स टू -3 में लोकल मिनिमम आया। So these are the concepts regarding the second order, that means the higher order differentiation. Here you can see up to the second order, the required concept, okay, has been revealed and discovered also. Okay, just you can see maximum number of questions will be completed up to this second order differentiations. There are many. There are I think very small quantity of these questions. Regarding there are very less number of questions. There are very less number of questions in the exercise where actually this f triple dash x, f 4 dash x, this will be used. Okay. So आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे क्योंकि रेनिंग बहुत हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। ठीक है। If you like my videos, if you like my lectures, please subscribe, like and share my channel. And regarding this concept, the second order, higher order derivative test, okay, if you have any doubt, if you have any query, just you can ask me in the comment box. I will give the answers and I will prepare, actually make another video for the doubt clearing session as well. Okay, if you have any doubt, then ask me anytime, anywhere. Okay, so till then stay safe and stay healthy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड जय हिंद।